Okay, so in last lecture itself, we have started the probability distribution. So this is our next unit, unit number 3. Okay, so there are two types of probability distribution. One is discrete. So this is one way is a discrete probability distribution, and second is continuous probability distribution. Okay, so what are the examples of discrete? These are the examples of discrete probability distribution. नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली. ओके, डिस्क्रिट में आपको सिंपली क्या याद रखना है, यू कैन फाइंड अ गैप बिटवीन टू नंबर्स. ओके, इफ देर इज अ गैप बिटवीन टू नंबर देन इट बिकम अ डिस्क्रिट. ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज अ इंटीजर वैल्यू, either there are 2 or there are 3. You cannot find a value in between 2 and 3, therefore these values are discrete values. Okay, set of integer is a discrete set. ठीक है, so therefore number of children in a family is a example of discrete probability distribution. Number of cars, okay, it is also a discrete value, therefore it is example of discrete probability distribution. Number of patients, again it's integer value. Number of days, integer value. And number of stars, okay, it is also integer value. Okay, so because of this these are the examples of discrete probability distribution. Okay, you cannot find a gap हाँ, there is a gap between two numbers. ऐसे आप इसको याद रख सकते हो. And what are the examples of continuous? Can you tell me one single example? Continuous probability distribution. Yes, जहाँ पे गैप आपको नहीं मिल सकता. So tell me some examples of continuous probability distribution. Yes, yes. height of हाइट है ना, students. सो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम से 4 फीट टू से 5 फीट. ठीक है, सो इन बिटवीन हर एक वैल्यू आपकी कंसिडर होने वाली है ना. 4.1, सो देयर में एग्जिस्ट वन स्टूडेंट हुज हाइट इज 4.1 फीट. ठीक है, देयर में एग्जिस्ट वन स्टूडेंट हुज हाइट इज 4.2, 4.3 लाइक दैट. ठीक है, बट सो व्हाट दिस इंप्लाइज, यू कैनॉट फाइंड सो दिस सो द कंटिन्यूस वैल्यूज आर देयर बिटवीन 4 to 5, है ना. 4 to 5 में आप क्या कर रहे हो, 4 to 5 में आप सारे वैल्यूज कंसिडर कर रहे हो. देयर इज नो गैप बिटवीन 4 and 5, देयरफॉर इट बिकम कंटिन्यूस. सो हाइट, वेट, है ना. एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, स्पीड ऑफ योर से बाइक, है ना, 0 km/h से 2 से 120, है ना. ये जो भी, सो दिस वैल्यूज आर कंटिन्यूस, हर एक वैल्यू आप इन बिटवीन कंसिडर कर रहे हो, है ना. तो इसलिए दिस बिकम अ कंटिन्यूस. So this is also one example of your continuous probability distribution where you cannot find a gap, है ना. हर एक वैल्यू आपकी इन बिटवीन कंसिडर हो रही है और ग्राफ कंटिन्यूस है. डिस्क्रिट का ग्राफ आपको पता ही है, ऐसे पॉइंट में आ जाएगा, है ना, डिस्क्रिट का ग्राफ, या ऐसे आ जाएगा ब्रेक ब्रेक, बट कंटिन्यूस में देर इज नो गैप और देर इज नो ब्रेक. ठीक है, एंड नाउ एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, देयर आर two discrete probability distribution. One is binomial and second is Poisson. This we need to consider under this discrete probability distribution. And continuous में एक ही आपको syllabus में, which is normal distribution. इतना आपका syllabus है. And the last part is probability, the pure probability part. So we'll directly take some MCQs on that. ठीक है, so this is your syllabus. Binomial distribution and Poisson distribution. This is the part of your discrete probability distribution or under discrete probability distribution. And as far as continuous probability distribution is concerned, there is only one tool, which is normal distribution. Okay, so let me start from first discrete probability distribution, which is binomial probability distribution. ये आपने already 12th में cover किया है. Okay, सबने. So what is binomial probability distribution? Consider an experiment with only two outcomes, one is success and other is failure. ठीक है, so that you can determine directly from a example. जो भी example आपको given होगा उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका success कहाँ पे और आपका failure कहाँ पे. So such type of experiment we have to consider under this binomial probability distribution. And the next part is what? Independent repeated trials of such experiment. It's called Bernoulli's trial. ठीक है, so I think I have already explained this part. In case of binomial probability distribution, all trials are independent. All trials are
independent means outcome of your first trial or outcome of your second trial is not depend on the previous trial. Outcome of your say second trial, third trial, or what may be your next trial, it is not depend on your previous trial. Okay, therefore so that is the example of independent trial. For example, tossing a coin. आप एक बार टॉस करो, आउटकम आपका हेड एंड टेल आने वाला है. सेकंड टाइम टॉस करो, आपका आउटकम हेड और टेल आने वाला है. ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम हेड आ रहा है तो सेकंड टाइम टेल ही मिलेगा, या फर्स्ट टाइम टेल आ रहा है तो सेकंड टाइम हेड ही मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. देयरफॉर दिस टू experiments or these two trials are independent, they are not depend on each other. Okay, so such type of experiment we have to consider as far as binomial probability distribution is concerned. ठीक है. Yeah, so binomial distribution is used under following conditions. Okay, these are the जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था. It consists of say n trials. Each trial result into two mutually exclusive outcomes, one labeled as success, other labeled as failure. So there are only two ways, either you have to go with success or either you have to go with failure. You will understand from an example. The probability of success is always denoted by P. तो P आपका क्या होगा? This is the probability of success. जो आप इसका सिंपल मैंने आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन में जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है या जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, दैट बिकम अ सक्सेस. ठीक है, सक्सेस मतलब क्या, जो आपको करना है, जो आपको फेस करना है, जो आपको कैलकुलेट करना है. तो ये आपको इजीली समझ में आ जाता है कि व्हाट इज माय पी एंड व्हाट इज माय क्यू. ओके, सो पी इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, या जो क्वेश्चन में जो पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, दैट बिकम अ सक्सेस. एंड क्यू इज व्हाट, क्यू इज 1 minus q, 1 minus p, or it is nothing but failure, probability of failure. Okay, suppose getting ahead is your success. So automatically what is your failure? What is your failure? Getting tail. Okay, so like that. And the trials are independent. Okay, so let us directly check the formula. Okay, and what is the formula of binomial probability distribution? So probability of getting R success. Probability of getting R success is equal to NCR P raised to R Q रेस टू n माइनस आर. ये आपने ऑलरेडी 12th में देखा है फॉर्मूला, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली ले रहा हूँ. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इज इक्वल टू पी इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, दिस इज कैपिटल पी, नॉट अ स्मॉल पी. एनसीआर पी रेस टू आर क्यू रेस टू n माइनस आर. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर? इट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, जहाँ पे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो. इसलिए फॉर्मूला भी याद नहीं रखते हो तो भी चलेगा. ठीक है, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट. नेक्स्ट इज दिस आर सम रिजल्ट्स जो मैं डायरेक्टली कंसिडर करने वाला हूँ. इसका प्रूफ भी आपने 12th में देखा है, बट एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न यू हैव टू फोकस मोर ऑन द एग्जाम्पल, नॉट ऑन द थ्योरी. सो यू कैन रेफर फ्रॉम, मतलब इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन गूगल, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, सिंपल एंड ईजी प्रूफ्स है. सो फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन चेक दिस. ठीक है, सो अंडर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज योर मीन? मीन क्या होता है आपका? n इंटू पी, वेर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट गिव्स यू मीन. ओके, व्हाट इज वेरिएंस? Variance is nothing but square of the standard deviation. It is equal to NPQ. NPQ, है ना? So standard deviation become under root of NPQ. This is one of the important result जो आप ज़्यादातर एग्जाम्पल में यूज करने वाले हो. Sum of all the probabilities is 1. Sum of all the probabilities is 1. I think this is the definition of your discrete. What is that? What is the meaning of PDF? हाँ, ये आपने लर्न किया है पीडीएफ फंक्शन 12th में. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस पीडीएफ? Probability density function. यस, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1. ठीक है, अभी मैं उससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ अब ये टॉपिक, बट यहाँ पे जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो ना, दैट फंक्शन इटसेल्फ इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. सो इफ यू ऐड ऑल दिस वैल्यूज दैट गिव्स यू 1. ठीक है, इट्स बेटर
टेक वन एग्जाम्पल डायरेक्टली। ओके, हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी इस एक सिंगल एग्जाम्पल से, तो आप अच्छे से फोकस करो, तो फिर आगे के किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड रिमेंबर, किसी भी क्वेश्चन में या एक्सेप्ट आई थिंक नॉर्मल, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि आपको कौन से मेथड से करना है, बायनॉमियल से करना है या पॉइजन से करना है या आपको आइडेंटिफाई करना है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन बायनॉमियल एंड पॉइजन, जो आपको आगे समझ में आएगा। अभी आपको बायनॉमियल में क्या पता है, इसमें हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है, इतनी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। नाउ हाउ यू एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन बायनॉमियल एंड पॉइजन, दैट यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। ठीक है, सो लेट अस राइट दिस सॉल्यूशन। आप बस मुझे बोलते जाओ कि क्या क्या करना है। फर्स्ट, अ फेयर कॉइन इज टॉस। एक्सपेरिमेंट पहले समझ में आना चाहिए, क्या एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को आपको टॉस करना है 6 टाइम्स, है ना। सो अ फेयर कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स? 6। ओके, आप बस मुझे रिप्लाई कर दे जाओ। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ओके, एग्जैक्टली 2 हेड्स, at least 4 heads, not heads, 1 or more head. So there are 4 questions, 4 सब क्वेश्चन। सो अभी मैंने आपको पहले क्लियर किया था, आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज माई पी। पी या स्मॉल पी, पी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आपके इस क्वेश्चन में आपका सक्सेस क्या है, जो कैलकुलेट करना है, दैट बिकम अ सक्सेस। सो व्हाट इज माई सक्सेस, हाउ यू डिफाइन योर सक्सेस हियर, हाउ यू डिफाइन योर सक्सेस हियर, जो पार्ट कैलकुलेट करना है दैट बिकम अ सक्सेस। सो हाउ यू डिफाइन योर सक्सेस हियर, डिफाइन करना है, हाउ यू डिफाइन योर सक्सेस हियर। इस पूरे चारों क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हो, आप बेसिकली क्या चेक करने वाले हो इन चारों केसेस में? to get ahead. गेटिंग हेड, है ना। वो नंबर चेंज हो रहा है ना, गेटिंग हेड ये आपका मेन एम है। मे बी गेटिंग 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, वो उसके सब केसेस है। बट व्हाट इज योर एम और व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आपको क्या देखना है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। क्योंकि आप देखो गेटिंग सारे क्वेश्चन में हेड हेड आ रहा है, सो गेटिंग हेड इज माई सक्सेस। जो सो इन जनरल जो पार्ट या जो प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, दैट बिकम योर सक्सेस। ये आप अच्छे से याद रखो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये अभी इसका कुछ यूज नहीं है। सक्सेस आपको समझ में आ रहा है क्या है, जो पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट बिकम अ पी। सो व्हाट इज माई पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। सो बोलो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? 1/2. 1/2, दैट वी नो, है ना। व्हेन यू टॉस अ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, दैट आल्सो implies प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू which is 1 minus 1/2, which is also equal to 1/2. Okay, now P capital, so by binomial डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल P ऑफ R, इसको आप रेड कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस। तो R इज एक्चुअली काउंट ऑफ सक्सेस। हाँ, R इज एक्चुअली काउंट ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है आपका, सक्सेस क्या है, गेटिंग हेड। ओके, तो उसका जो भी काउंट होगा दैट बिकम R। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R, कैपिटल P ऑफ R इज इक्वल टू NCR small p raised to R q raised to n minus R. Now when we consider a first case where we have to calculate probability of getting exactly 2 heads, exactly 2 heads. So what is capital P of R की वैल्यू क्या लेनी है मुझे यहाँ पे, what is R? 2. है ना। R मतलब क्या होता है, गेटिंग हेड का काउंट। कितने हेड आपको देखने हैं यहाँ पे, 2 हेड। सो P of 2, what is P of 2? N मतलब 6, 6 C2, P is 1/2, Q is also 1/2, but 6 minus 2 is 4। करेक्ट लिखा है मैंने ये। करो कैल्शियम में सॉल्व। ये कैल्शियम में शायद आपको ऐसे लिखना है 6 C2 देन प्रेस इक्वल। करो, टेल मी दिस वैल्यू। कैल्शियम में ऑप्शन है वहाँ पे, अगर यस कैलकुलेटर है ना तो वो कहाँ पे है, यहीं पे नीचे, मुझे भी नहीं। सर पी का वैल्यू 0.2343 आया। क्या आंसर आ रहा है, 234375। 0.23 अप टू 4 डिजिट लिखो, इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखना होगा। हाँ, अभी सॉरी ES कैल्शियम में ना डिवीजन का जो सिंबल है वह उसके ऊपर है NCR बटन।
वहाँ पे ऊपर लिखा है उन्होंने एनसीआर, सो यू कैन यूज दैट, शिफ्ट प्रेस करके उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। कैल्शियम में सबको आ रहा है ना, ये कैल्शियम में आना चाहिए तभी टाइम से होगा। सो 6c2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1/2 स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू 4। यस करेक्ट आंसर बोला था, 0.2344 लिखता हूं मैं अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है। ये था आपका दिस इज योर फर्स्ट केस। व्हाट इज योर सेकंड केस? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 4? आर की वैल्यू मुझे एटलीस्ट 4 चाहिए, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 4? एटलीस्ट 4 का आप अपने लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करोगे? एटलीस्ट 4 मींस व्हाट? greater than or equal to 4. हाँ, सो मैथमेटिकली एटलीस्ट 4 मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके आगे, ओके। सो एटलीस्ट 4 मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ओके, है ना। तो इसको आप रीड कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड, यू रीड दिस पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड। बट आप एक्सपेरिमेंट कितने बार रिपीट कर रहे हो? 6 बार रिपीट कर रहे हो। सो व्हेन यू टॉस अ कॉइन 6 टाइम्स you may get 4 head, you may get 5 head, you may get 6 head। इसके आगे आप जा सकते हो क्या? इसके आगे आप जा सकते हो क्या? 6 टाइम्स अगर आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो, 6 टाइम्स अगर आप कॉइन टॉस करते हो, सो ज्यादा से ज्यादा आपको 6 टाइम्स ही हेड मिल सकता है, 7 टाइम्स हेड आपको कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। सो द लार्जेस्ट वैल्यू इज n, ऑलवेज रिमेंबर। सो जस्ट कैलकुलेट दिस। तो ये आपको मैं अभी पीपीटी पे ही दिखाता हूँ। सो solution is probability of getting head which is 1/2, so q is also 1/2, binomial distribution का ये फॉर्मूला है आपका, okay, and n is 6, exactly 2 head मतलब p of r equal to 2 which is 6c2 and your answer is correct, 0.2344। नेक्स्ट जो था एटलीस्ट 4 हेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, बट आप 6 टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हो तो आपको एक तो 4 टाइम्स हेड मिलेगा, 5 टाइम्स हेड मिलेगा, या तो 6 टाइम्स हेड मिलेगा। इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। सो दिस आर द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। सो जस्ट रिपीट द फॉर्मूला फॉर ईच केस, ओके। 6cr, तो इस केस में r4 लेना है, p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, है ना। फॉर्मूला याद रखो, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कॉर्नर पे, है ना। 6c5 p रेस टू 5 q रेस टू 6 माइनस 5, 6c6 p raised to 6 q raised to 6 minus 6, and you can do this directly on a calculator if you want. So your final answer is 0.3438। now the next case is what? not head, मतलब आप 6 बार कॉइन को टॉस करो, किसी भी टॉस में मुझे हेड नहीं चाहिए, मीन्स व्हाट? r इक्वल टू 0, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0, तो 6c0 p raised to 0 q raised to 6 minus 0, just put the value of p and q, that gives you 0.0156, ठीक है। and what is the fourth case? one or more head means what? 1 मतलब r equal to 1 and greater than 1, so बोलो r, what is the one or more head means what? P of r plus P of r Greater पहले इसका r मीनिंग greater than or equal to। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बट आप एक्सपेरिमेंट, आप कॉइन 6 टाइम्स ही टॉस कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यू विल गेट 1 हेड, मे बी यू विल गेट 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, करेक्ट ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू r, देयर आर ओनली 6 वैल्यूज, मतलब आप 6 तक ही जा सकते हो। सो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये कितना लेंदी हो रहा है कैलकुलेट करने के लिए, और आपको मैंने एक और रिजल्ट पहले ही दिया है। क्या है वो रिजल्ट? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ओके। यानी आप वो एक्सपेरिमेंट 6 टाइम्स रिपीट कर रहे हो, एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मतलब आर के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है, आर के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है, ओके, अगर आप उनको ऐड करते हो, ओके, दैट गिव्स यू 1, दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। मीन्स व्हाट? probability of r equal to 0, probability of r equal to 1 up to probability of r equal to 6, correct है ना। what are the possible values of r? 0 head, 1 head, 2 head, 3 head up to 6 head, these are the only possible values of r, yes, correct or not?
आर मतलब गेटिंग हेड। अगर आप 6 बार कॉइन को टॉस करते हो तो कितने बार हेड मिल सकता है? 0 टाइम्स मिल सकता है, 1 टाइम्स मिल सकता है, 2 टाइम्स मिल सकता है, 6 टाइम्स मिल सकता है। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी फॉर आर? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी फॉर आर? नो सर। नो। तो रिजल्ट क्या है? आर के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है हर एक केस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, उनकी एडिशन हमेशा 1 आती है। So what is my result? Sum of all the probabilities is always equal to 1. Sum of all the probabilities is always equal to 1. So this I can write it as, क्या लिख सकते हो आप बोलो? Now tell me. If I have this 1 minus probability of getting 0 head. 1 माइनस कौन सी वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे? r इक्वल टू 0 मिसिंग है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे आपका एक सिंगल कैलकुलेशन आएगा और यहाँ पे 6 टाइम्स कैलकुलेशन करना होगा। तो आप देखो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है या ट्रिवियल करना है। ठीक है, तो इसलिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। So let me show you properly. Greater than or equal to 1 means this, but we know that sum of all the probabilities is 1. That means P of r equal to 0 up to P of r equal to 6 is 1. So that implies P of r greater than or equal to 1 minus P of r equal to 0. That is 1 minus 6 is 0, P raised to 0, Q raised to 6 minus 0. And that gives me 0.9844. ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। अब इसके ये हम पहले मैं मैन्युअली आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, सॉरी जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ, अभी आप बोलते जाओ, मैं लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है उस हिसाब से। ओके, ऑन एन एवरेज अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आर्टिकल इज लाइकली टू हैव 2 डिफेक्टिव्स। ओके, तो पहले स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि 10 आर्टिकल्स में से एक बॉक्स है। ओके, मैं प्रॉपर लिखता हूँ फिर से सॉल्यूशन में। अ बॉक्स मतलब 1 बॉक्स जिसमें 10 आर्टिकल्स है, उसमें से हमेशा 2 आपके डिफेक्टिव आते हैं, ये आपको गिवन है। फिर नेक्स्ट रीड करते हैं। इफ वी कंसिडर कंसाइनमेंट ऑफ 100 बॉक्स, ऐसे अगर आप 100 बॉक्स लेते हो, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू हैव 3 और लेस डिफेक्टिव। तो आपको क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करना है? 3 और लेस डिफेक्टिव का काउंट आपको चाहिए। ऐसे कितने बॉक्सेस है? हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू हैव 3 और लेस डिफेक्टिव। ऐसे कितने बॉक्सेस है जिनमें लेस देन 3 और लेस है ना, सो लेस देन और इक्वल टू 3 डिफेक्टिव आर्टिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो उस मतलब वो बॉक्सेस का काउंट कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? जस्ट फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और लेस डिफेक्टिव आर्टिकल। ये इन जनरल कैलकुलेट करो। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी आता है तो आप कोई भी वो मतलब एक बॉक्स के लिए, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? एक बॉक्स के लिए कैलकुलेट करो, लेकिन आप इजीली 100 बॉक्सेस के लिए लिख सकते हो। सो व्हाट इज आवर एम? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और लेस डिफेक्टिव आर्टिकल। 3 और लेस डिफेक्टिव आर्टिकल पहले ये कैलकुलेट कर लेते, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 100 बॉक्सेस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। चलो अभी जितना समझ में आ रहा है उतना आ रहा है। पहले मुझे ये बोलो, व्हाट इज माई पी? 1 बाय 1 जाते हैं। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज माई पी। करना क्या है? कैलकुलेट 3 और लेस डिफेक्टिव व्हाट आर्टिकल। सो व्हाट इज माई पी? पी क्या लेना होगा मुझे? पी इज 1/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ defective आर्टिकल। It is this everything is for only 1 box. Okay, probability of defective article. So what is that? उसके लिए आपको गिवन है एक इन जनरल स्टेटमेंट ही गिवन है। जब आप 10 आर्टिकल्स लेते हो उसमें से 2 डिफेक्टिव आते हैं। So what is my probability? When you consider 10 articles, 2 are always defective. So what is my probability? 2/10. Correct? Yes or no? yes sir. So that gives me 1/5. Okay, so yes, so 1/5 is the probability of getting defective article. This is nothing but 0.2. ये हो गया पहला पार्ट। टेल मी क्यू। 1 minus p
8/10. 0.8 डन, दो वैल्यूज मिल चुके हैं आपको। मैंने पहले क्या बोला है, पहले ये कैलकुलेट करो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और लेस डिफेक्टिव, ठीक है। सो यूज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर डिफेक्टिव आर्टिकल। इसको रीड कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए। इन एवरी क्वेश्चन आर इज डिफरेंट। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आर्टिकल इज माई पी, तो उसका जो काउंट होगा वो आर होगा। इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद दिस, पी इज ऑलवेज रिलेटेड विद आर। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल, तो उसका जो काउंट होगा वो आर होगा। सो इट इज इक्वल टू NCR P raised to R Q raised to N minus R. Now how you write probability of getting 3 or less defective? Probability, therefore probability of getting 3 or less defective articles is equal to what? P of what? R. R मतलब वो आर्टिकल का काउंट है, वो काउंट आपको क्या सेट करना है? लेस इक्वल 3, करेक्ट और नॉट? करेक्ट लिखा है मैंने ये। Yes, sir. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर लेस इक्वल 3? 10 आर्टिकल्स हैं टोटल। एक ही बॉक्स कंसिडर करो, एक बॉक्स में 10 आर्टिकल है। यानी कि वैल्यू क्या है इस केस में? P of R equal. ये सब कुछ मैं कर रहा हूं सिंगल बॉक्स के लिए। आई एम डूइंग एवरीथिंग ओनली फॉर वन बॉक्स, बट एक बॉक्स में कितने आर्टिकल है? दैट गिव्स मी n। एक बॉक्स में कितने आर्टिकल है? 10। हाँ, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ इट इज ओनली फॉर, हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने दो, अभी उन्होंने बोला कंसाइनमेंट ऑफ 100 बॉक्सेस, यहाँ पे 2000 बॉक्सेस भी आने दो, आप पहले करने वाले एक सिंगल बॉक्स के लिए या एक सिंगल केस में आप ये सब कुछ करने वाले हो, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके आपको बाकी केसेस में मिल जाएगा, ठीक है। सो n इक्वल टू 10, ये इस केस में सब कुछ चल रहा है। अगर 10 आर्टिकल्स मेरे पास आ जाते हैं, उसमें से 2 डिफेक्टिव आते हैं, तो वहीं पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मिलने वाला है। नाउ आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और लेस डिफेक्टिव आर्टिकल फॉर वन बॉक्स। दिस ये आपको मिलने वाला है ओनली फॉर वन बॉक्स। यस, व्हाट इज दैट? टेल मी what are the possible values for r less equal 3? R equal to 0. R equal to 0, 1, 2, 3. R equal to 0, 1, 2 and 3. ठीक है, so let me do this calculation. So let me show you here. 1 by 5. This is the formula. N is equal to 10. Less equal 3. Let me do that calculation. And what is this? लिखा है क्या मैंने? हाँ, नहीं लिखा, चलो। What is this? ये क्या है बेसिकली? This is the probability of getting 3 or less defective article in one box. बट आपको कौन से केस में चाहिए? What is the actual question? Find the number of defective articles in a consignment of 100 articles. So what is the next part? ये वन बॉक्स के लिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट गिव्स यू द काउंट 87.91। बट ये क्या है? इंटीजर वैल्यू है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज अ इंटीजर वैल्यू। तो क्या कंसिडर करना होगा मुझे? यहाँ पे लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा शायद। हाँ, सी आगे क्या करना होगा मुझे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज अ इंटीजर वैल्यू ना। ऐसा कभी हो सकता है कि 1.2 बॉक्सेस में कंसिडर कर रहा हूं, सो इट्स अप्रोक्सीमेशन इज 88, करेक्ट ना? सॉरी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स है ना, हाँ, तो ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू होगा ना वो, करेक्ट और नॉट? सो फॉर 100 आर्टिकल्स, कंसाइनमेंट ऑफ 100 बॉक्सेस है, आई थिंक ये 100 बॉक्सेस, हाँ। सो इट इज इक्वल टू 100 इंटू 0.8791। आपने एक बॉक्स के लिए किया है, 100 के लिए चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट गिव्स मी 87.91। ओके, उसका अप्रोक्सीमेशन होगा 88। सो देयर आर टोटल 88 बॉक्सेस, ओके, विच हैविंग 3 और लेस डिफेक्टिव आर्टिकल्स। इज दिस क्लियर? और भी कुछ क्वेश्चन लेने वाला, अभी इतना तो समझ में आ रहा है? यस और नो? बोलो, इज दिस क्लियर? यस सर। या फिर से एक्सप्लेन करना है बाकी स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है या फिर से एक्सप्लेन करना है? सर आ रहा है सर। ओके, गुड।
नेक्स्ट, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ तो वैसे भी वो क्लियर हो ही जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/3। इफ ही फायर्स 5 times, what is the probability of his hitting the target at least twice? तो उससे पहले टेल मी व्हाट इज माई पी, व्हाट इज सक्सेस, क्या चाहिए आपको यहाँ पे? यस, व्हाट इज माई पी, व्हाट इज द Hitting. probability of his hitting the target at least twice, but what is p? ये तो काउंट 1/3. नहीं, हाउ यू डिफाइंड इट, इसको डिफाइन करके बोलो पहले, आंसर करेक्ट था आपका, ये तो काउंट आ गया, बट पी आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग दी टारगेट। Target. हमेशा याद रखो पी होता है आपकी प्रोबेबिलिटी, और ये जो एटलीस्ट ट्वाइस ये जाता है आर में, आर मतलब उसका काउंट, उसका काउंट, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट, इट इज ऑलरेडी गिवन 1/3, ओके। सो 1/3 मीन्स व्हाट? 1/3 इज 0. ठीक है, इसे रखते वो अप्रोक्सीमेशन में जाएगा। एंड व्हाट इज क्यू? 1 minus p, that is 1 minus 1/3, that is 2/3। इसको ऐसे रहने दो, पॉइंट में लेके जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो एरर देगा। यस, नेक्स्ट इज व्हाट? बाय बाइनोमियल। probability of getting r success is equal to NCR p raised to r q raised to n minus r। अभी इस केस में मुझे बोलो हाउ यू रीड दिस p ऑफ r, प्रोबेबिलिटी, इसको रीड कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग Target at least 2 times. हाँ, है ना, एटलीस्ट r टाइम्स, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट r टाइम्स इन जनरल ना, बट आपको क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको हिट करना ही है। व्हाट इज n? कितने बार एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हो? 5 times. 5 टाइम्स। और कितने बार आपको हिट करना है? एटलीस्ट 2 रिपीट करना है 5 टाइम्स, और हिट कितने बार चाहिए आपको? एटलीस्ट 2। करेक्ट लिखा है ये मैंने? Yes, sir. सो कैसे करोगे? इसका आंसर आता है पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2, पी ऑफ आर इक्वल टू 3, 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हो ना, पी ऑफ आर इक्वल टू 4 प्लस पी ऑफ आर इक्वल टू 5। ये बेटर होगा या इसका कॉन्वर्स लेके करना है? कॉन्वर्स नहीं, उसको क्या बोलता है? आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड। यस, 1 minus. हाँ, सो इट्स बेटर टू गो विद देयर कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ओके। सो आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 5, ये करने से अच्छा आप क्या करो? इसका रिवर्स पार्ट कैलकुलेट करो। सो 1 माइनस क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग? 0. 0 मिसिंग है और 1. 1 मिसिंग है। तो यहाँ पे 2 ही वैल्यूज का कैलकुलेशन आता है, यहाँ पे 4 वैल्यूज का कैलकुलेशन आता है। ये आपको हमेशा सारे क्वेश्चन में जज करना है कि आप डायरेक्टली करने वाले हो या उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट यूज करने वाले हो, नेगेटिव पार्ट और द फेल्यूअर पार्ट, ठीक है। सी, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? यहाँ पे आप सक्सेस कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। अगर मैं ये पार्ट रिमूव करता हूँ सो इट गिव्स मी फेल्यूअर, 1 माइनस करता हूँ तो नॉट फेल्यूअर, नॉट फेल्यूअर इज सिमिलर टू सक्सेस, ठीक है। या आप वो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, सारे वैल्यूज की सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ दैट रिमेनिंग वैल्यू, आर इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 1। सो जस्ट कैलकुलेट दिस, दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। सो लेट मी शो यू दिस probability of man hitting the target, okay, it is given which is 1/3, from that you can calculate q which is 2/3, है ना, by binomial distribution p of r equal to this, but आप n equal to 5 times आप वो experiment repeat कर रहे हो। so probability of man hitting at least, hitting the target at least twice, correct, so that is r greater than or equal to 2, बट इसमें आपका टाइम जाएगा। आपको एक रिजल्ट पता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो आप इसका रिवर्स पार्ट यूज कर सकते हो। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मतलब सारे वैल्यूज की एडिशन 1 आती है, बट आपको इसके आगे ही कैलकुलेट करना था, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस पी ऑफ आर इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ आर इक्वल टू 1। सो जस्ट पुट दिस वैल्यू, एन सी आर, आर इज 0, एन इज 5, सो 5 सी 0, p रेज टू 0, q रेज टू 5 माइनस 0,
5c1 p raised to 1 q raised to 5 minus 1. Just put p and q, put this value in calculator, you will get the answer as 0.539. So this is the probability of a man hitting target at least twice. ठीक है. Now you all solve this question. अभी आप ये करो, मुझे आंसर बोलो और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. डू इट. मैं रीड करता हूँ. 20% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस बाय मशीन इज डिफेक्टिव. ओके. Determine the probability that out of 4 bolts chosen at random, 1 is defective, 0 is defective, and at most 2 bolts are defective. Do it fast और मुझे आंसर बोलते जा. एटलीस्ट फर्स्ट का तो बोलो पहले. 1 is defective. अभी मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन है. राइट डाउन एवरीथिंग. क्या क्या लिखना है आपको यहाँ पे. व्हाट इज P, फिर Q कैलकुलेट करो विच इज 1 माइनस P, देन बाय बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. P of R is equal to NCR, P raised to R, Q raised to N minus R. Also write down N, number of trials. और फिर फर्स्ट केस में 1 is defective means what? P of R is equal to what? बोलो. So P of R equals to 1. मुझे आंसर बोलो अगर आपने किया है किसी ने. 0.4096. 0.46 4096. 4096. ठीक है. नेक्स्ट करो. अदर स्टूडेंट्स सबको यही मिल रहा है, चेक करो. आई गॉट वन आंसर. ये इसमें सबसे मतलब ये सबसे इजी क्वेश्चन है जिसमें सबसे कम राइटिंग रहती है आपको. whether all will get this answer or not. 0.4096. जस्ट चेक. मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ और आप चेक करो कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं. अदर स्टूडेंट्स आई गॉट ओनली वन रिप्लाई. बाकी स्टूडेंट्स को सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं या कुछ और मिल रहा है. टेल मी योर आंसर. यस, एनीवन जिसने कंप्लीट किया है. बोलो. एक ही आंसर आ रहा है, बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे थे. सर सेकंड कंडीशन का भी वही आया है. 0.4096 आया है. ओके यस सर. फर्स्ट का 0.4096 है. ओके ठीक है. तो फिर कुछ स्टूडेंट को तो मिल रहा है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस. ठीक है, आप कंटिन्यू करो आगे के दो वैल्यूज. थर्ड भी कैसे कैलकुलेट करो. सो इन पूरे क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है डिफेक्टिव बोल्ट के बारे में आपको कैलकुलेशन करने. सो व्हाट इज माय P? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट. Defective bolt, and it is given. Okay, it is already given in the example. 20% of bolts produced by machine is defective. मतलब 100 में से 20 bolts हमेशा defective आते हैं. ठीक है. So probability of getting defective bolt is what? Probability of getting defective bolt is 20 by 100. Okay, 20 by 100 is nothing but 0.2. So Q is equal to 1 minus 0.2, that is 0.8. ये हो गया आपका आधा पार्ट. नेक्स्ट आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है. आपने क्या किया है, यू हैव टू चूज 4 बोल्ट्स. सो एक्सपेरिमेंट में क्या है, n इक्वल टू 4. 1 इज डिफेक्टिव. उन चारों बोल्ट्स में फ्रॉम दैट 4 बोल्ट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव मीन्स P ऑफ R इक्वल टू 1. तो फॉर्मूला क्या है, 4C1 P रेज टू 1 Q रेज टू 4 माइनस 1. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q. सो 4C1 P is 0.2 and Q is 0.8. 4 minus 1 is 3. Do it. ठीक है. ऐसे आप बाकी सारे कैलकुलेशन करो. लेट मी शो यू हियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 1.1 by 5, that is 4 by 5 है ना, by binomial distribution n equal to 4. 1 is defective is n
4c1 p raised to 1 q raised to 4 minus 1, that is 4c1 1 by 5 raised to 1 4 by 5 raised to 3, that is nothing but 0.4096, करेक्ट था। नेक्स्ट जीरो डिफेक्टिव मतलब r इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू जीरो केस में फिर से कैलकुलेशन करो, n c जीरो p रेस टू जीरो एंड q रेस टू n माइनस r, है ना। सो दैट इज ऑल्सो 0.4096। थर्ड केस क्या थी, एटमोस्ट टू डिफेक्टिव मीन्स व्हाट, एटमोस्ट टू मीन्स लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखो, एटलीस्ट मीन्स उसके आगे, एटमोस्ट मीन्स अप टू दैट पार्ट ओनली। सो लेस इक्वल आर, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज 0, 1 and 2। कैलकुलेट योर यूज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच केस, just put the values p and q, do that calculation on calc, you will get that answer as 0.9728, ठीक है। आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें इस पूरे टॉपिक में आपको अभी क्या समझ में आ रहा है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको क्या देखना है कि p क्या गिवन है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द एग्जाम्पल। सारे केसेस में प्रोबेबिलिटी आपको गिवन ही रहती है। q क्या गिवन है, q आप कैलकुलेट करते हो p से, फिर आपको देखना है कि एक्सपेरिमेंट कितने बार रिपीट करना है, और फिर आपको देखना है कि व्हाट इज द काउंट फॉर r, है ना। जो आपका p है उसका काउंट क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, बट उस हेड का जो काउंट आता है वो r में आता है, ठीक है। इफ p इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, तो उसका जो काउंट आएगा वो r में आ जाएगा। सो r इज द काउंट एसोसिएटेड विद दिस p, है ना। प्रोबेबिलिटी का जो काउंट है वो आप r से कनेक्ट कर रहे हो, इतना आप अगर याद रखते हो तो आई थिंक किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। So in next session we'll start the next topic, which is Poisson distribution. Any doubt in today's session? Yes? No, sir. So today test is scheduled on unit 1 and unit 2. Those marks will be considered. Your timing is from 6 to 9. Okay, बहुत ज़्यादा मैंने आपको टाइम दिया है। अटेम्प्ट सबके लिए मैंडेटरी है, देयर इज नो रिटेस्ट फॉर दिस, ठीक है। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम या कुछ इशू, आप मुझे पहले कॉल करो, प्रायर यू हैव टू टेक द परमिशन, देन ओनली आई विल गिव सम अल्टरनेटिव फॉर दैट, ओके। अदरवाइज अगर आप एब्सेंट हो, आई विल डायरेक्टली कंसिडर इट एज कंसिडर दिस 0 मार्क्स फॉर योर परफॉर्मेंस, देयर इज नो रिटेस्ट, नथिंग, ठीक है।